नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। आज जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ। जय श्री राम भी है, पर शंकराचार्य की यह जब अपील हुई तो मैं वीडियो बनाने से नहीं रोक सका। सवाल यह नहीं है कि रोकने की कोशिश की गई रथ यात्रा, सवाल यह गई कि किसने की। उड़ीसा विकास परिषद। उड़ीसा विकास परिषद का तो मैंने नाम ही जीवन में पहली बार सुना है। इसका क्या योगदान है समाज के प्रति? क्या उड़ीसा विकास परिषद को यह लगता है कि सिर्फ जगन्नाथ रथ यात्रा रोकने से जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी? ये तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि उड़ीसा में मैंने पढ़ा है, सुना है, लोगों से बातचीत की है, पता चल रहा है कि वहाँ की मस्जिदें खुली हैं, वहाँ लोग नमाज पढ़ रहे हैं फ्राइडे को हज़ारों लाखों की संख्या में। वहाँ लोग संडे को चर्च जा रहे हैं हमेशा की तरह। मतलब ईसाई इस देश में अपने पूजा पाठ, अपनी संस्कृति को बचा सकता है, इस्लाम के मानने वाले लोग बचा सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें यह भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करना था तो कहते आप सिंबॉलिक रथ यात्रा निकालिए, कम लोगों को बुलाइए, हम वो भी ध्यान में रख लेते, हम वो भी कर लेते। सनातन धर्म ने इस पूरे पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान जितना बलिदान दिया, मुझे नहीं लगता किसी और धर्म ने, कम से कम धर्म तो है भी नहीं, मैं मानता भी नहीं, पंथ के लोगों ने कोशिश भी की है, वो अपने एजेंडे में रहे हैं। तो सवाल ये है कि उड़ीसा विकास परिषद के लिए जो महारथी बड़े बड़े लॉयर्स लड़ रहे थे, वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि महामारी फैल जाएगी वगैरह, ताकि थोड़ा बने, समझ रहे ना, कि थोड़ा सा माहौल बने। अब आ गए हैं लोग जो बॉलीवुड के नचनिया गैंग है कि भाई देखो कितने बेवकूफ़ हैं हिंदू, रथ यात्रा के लिए लड़ गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। आप साधु महात्मा की एक बात सुनिए, उसके बाद बात करें। नारायण, जय जगन्नाथ। माइसेल्फ वैष्णव पुरी फ्रॉम पुरी जगन्नाथ लंगुली मठ श्री पंचदशनाम जूना अखड़ा। Very unfortunately, I am speaking today that my heart is very sad about hearing the blind Supreme Court's decision that car festival will be detained. So that I am thinking and I am speaking within the law, not beyond law. Law means logically accepted witness. In Puri Jagannath Grand Road, there is zero corona. Anyone has not infected yet corona in Puri Grand Road, Puri Jagannath. So that I am challenging to the Supreme Court, why Supreme Court is not exercising his power to stop cow killing in India. Why Supreme Court is not exercising his power to stop liquor ban in India. Why Supreme Court is not thinking seriously about the welfare of the country. And this is the Puri Jagannath's culture, the heritage and the culture wearing himself, that you can see that Ujjain Mahakal, one saint was come by foot from 45 days long journey. He arrived here at Puri Jagannath. Still now today the burning example of devotees are coming by foot, so that you cannot stop Supreme Court of India. You have to review, you have to modification, but you have to provide us justice. We have given you the chair for justice. If you will be not wear the capacity to deliver the justice, then you have no moral right to stay there. You have to just leave the chair. And as per my beliefs, and we are thinking, our faith is beyond the science. When the science defeated, the spiritualism started. So that this is the power of Jagannath. Puri Jagannath is safe, Odisha is safe almost. Only 12 deaths happened due to corona, so that this is not a major effect on Odisha. So that on the name of corona you cannot stop car festival. And the powerful servitors of Jagannath, they are believing and their faith on Jagannath Ji as the judge of the Supreme Court, the supreme of the Supreme Court. So that our judge is Jagannath, not Supreme Court judge. So that I am challenging and I am awakening to all of the servitors. You have to united and you have to show your power and your love. तो महात्मा जी ने एक बात कही कि जहां से साइंस की सोच खत्म होती है, वहां से जगन्नाथ जी की महिमा शुरू होती है। और उसका उदाहरण तो आप लोग सब जानते हैं कि साइंस भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हवा के विपरीत में कोई फ्लैग, झंडा कैसे लहरा सकता है।
ये अपने आप में एक प्रश्न है। और आर्किटेक्ट समझिए, कला समझिए या कृपा समझिए, आप जो समझ सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे साइंस ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं पूरी दुनिया को ही एक साइंस मानता हूं जो आपको समझ में नहीं आता। ब्रह्मांड की संरचना से लेके ओमकार से लेकर के सनातन धर्म में कई ऐसी चीजें जो आप नहीं समझ सकते। कई ऐसी चीजें थी जिसे आपने धीरे धीरे समझी और अपने नाम पे किया। लेकिन सनातन धर्म को एक विंग लगातार मिटाने की अब कोशिश कर रहा है। और जब मैंने संगठन बनाया था मित्रों, तो मैंने कहा था कि जो लोग स्वेच्छा से जुड़ना चाहते हैं जुड़े, जो लोग डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि मुझे ऐसे राइट विंगर्स को कौन डोनेशन देगा, पर फिर भी मैंने बोला और यकीन मानिए लगभग 8,000 रुपये डोनेशन आए, जिससे ये वेबसाइट वगैरह का काम हुआ और अब सर्वर अपग्रेड किया जा रहा है। तो हमारा लक्ष्य 2025 तक खुद को इतना विशाल करना है। आप सबकी जो है लेटर टाइपिंग हो रही है, जो लोग जुड़ गए हैं, और सनातन आर्यावर्त संगठन इस देश का भविष्य बनने जा रहा है। 2025 तक हम इसको इतना एक्सपैंड कर लेंगे कि इस तरह की जो हिमाकत कोई करेगा उनको सबक सिखाएंगे। ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं पूरे सनातन धर्म के खिलाफ, ये तमाम लव जिहाद के खेल, ये जमीन हड़प लेना मजार के नाम पे, ये सब अब बंद होने वाला है। और ये सब बंद करेंगे मैं, आप और हमारा ये संगठन मिलकर ये कार्य करेगा। आप में से कई लोगों के लेटर टाइप हो चुके हैं और 1-2 दिन में पोस्ट कर दिए जाएंगे, आपके घरों तक पहुंच जाएंगे। और उसके बाद जिनको जो हमने जिम्मेदारियां सौंपी है वो अपने अपने शहर में संगठन के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे ग्राउंड पे। ग्राउंड पे संगठन को जोड़ने के बाद, अब जैसे बिहार हुआ, तो बिहार में कई ऐसी चीजें, सनी गुप्ता मर्डर केस आपको याद होगा, या कैसे हमने देखा कि तांडव हुआ था गांधी मैदान के पास जो एंटी-सीए प्रोटेस्ट के नाम पे। ये सारी चीजें हर जगह हो रही है, जैसे एंटी-सीए प्रोटेस्ट पूरे हर जगह हुआ है। हमारा भी काम यही है कि पहले माइनॉरिटी का सब्जेक्ट क्लियर करें कि माइनॉरिटी में कौन है, और जो नौबौद्ध और सो कॉल्ड दलित वलित मिशनरीज ईसाई बन जा रहे हैं उनको आरक्षण क्यों मिलेगा, इस बात पे भी सवाल होना चाहिए। क्योंकि आरक्षण तो बाबा साहब अंबेडकर ने उन दलितों के लिए कहा था। आपने तो धर्म का परिवर्तन कर लिया है, अब तो आप जेफेत के पुत्र बन गए हैं, तो जेफेत के पुत्रों को कैसा आरक्षण, इस बात की तो समीक्षा होनी चाहिए। और नहीं होगा तो हम सड़क पे लड़ेंगे दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब लड़ाई तो आर पार की होनी है। माइनॉरिटी में कौन है, ये 35 करोड़ मुसलमान हैं माइनॉरिटी में, या फिर दुनिया की ये 5वीं सबसे बड़ी आबादी जो भारत में रह रही है माइनॉरिटी कैसे है? तो इस बात पे क्लियर होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारा मकसद, ये बहुत बड़ा मकसद है। इसके लिए हमें कमर कस लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले सिर्फ 1 साल के अंदर आप सब जिम्मेदार लोगों को, जिन्होंने मुझसे अपने आप को जोड़ा है, आर्यावर्त सनातन संगठन, कुछ लोग कहेंगे कि भैया आर्यावर्त सनातन संगठन का अभी तक वेबसाइट नहीं है। मैं अपने पास से जितना कुछ कर सकता था कर रहा हूं, चाहे वो पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों तक फूड पहुंचाना हो, जैसा कि आपने कम्युनिटी पोस्ट में देखा होगा, पढ़ा होगा, या फिर लोगों की मदद करना हो, इकोनॉमिकली लड़कों के हिसाब से लव जिहाद जो हो रहा है उसके खिलाफ ग्राउंड पे जाके काम करना हो, तो ये सारा काम चल रहा है। बाकी जिनको डोनेशन करना है उनके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप कर सकते हैं, 2, 4, 5 लोग जो भी हैं। अब महत्वपूर्ण मुद्दा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट हो गया, लव जिहाद हो गया, माइनॉरिटी हो गया, और जो ईसाई बन जा रहे हैं उनका आरक्षण खत्म हो भाई। क्योंकि आप हमारे हिंदू भाई थे तब तक आपको आरक्षण देंगे हम, इसमें कोई संदेह नहीं, तब तक आप हकदार हैं। लेकिन अब तो आप जेफेत के पुत्र बन गए ना, तो जेफेत के पुत्रों को तो आजीवन भाई गोरों की गुलामी करनी है, तो फिर आपको आरक्षण कैसा? आपको तो आरक्षण नहीं चाहिए ना। फिर आपको तो जेफेत का तो यही है ना कि जेफेत के पुत्र जो काले पुत्र हैं वो गोरों की गुलामी करेंगे, यही है ना ईसाई धर्म में, और आजीवन गुलामी करेंगे।
तो जब आपने स्वीकार कर लिया है कि आप गुलामी कर, तो फिर आरक्षण कैसा? फिर तो आरक्षण का कोई बात नहीं बनता। अब इन मुद्दों के साथ क्या कुछ लोगों ने पूछा है कि भैया हम राष्ट्रीय चुनाव लड़ेंगे क्या? कुछ एक सीटों पे हम वहां जहां पे अति भ्रष्ट, वैसे हमारे लिए अब जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में आदित्य योगीनाथ जी महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर उनकी कृपा दृष्टि हुई कुछ सीटों पे तो भविष्य में सोचा जा सकता है, परंतु अभी हमारा ये लक्ष्य नहीं है। हम अगर चुनाव की तरफ चले जाएंगे, राजनीति की तरफ चले जाएंगे, तो हमारी हालत आरएसएस जैसी हो जाएगी। हमें अपने आप को इस स्तर पे लेके जाना है कि हमारा संगठन का नाम सुनते ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसकी हालत खराब हो जाए, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं हो, इतना ताकत नहीं हो कि हमारे संगठन का प्रतिरोध कर पाए। और बाला साहब ठाकरे जी के स्टाइल को पकड़ा जाए अगर, तो हम और हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग जो कहें वही वहां के लोकल नेता करें, चाहे किसी भी पार्टी के हो। ये इस संगठन का निर्माण का मकसद है, और कुछ बड़ा ऐसा नहीं करने वाले हैं हम कि धमाका हो। जैसे अब एनटीसीए प्रोटेस्ट होना ही है, आज कल परसों कभी भी होना ही है, तब हमारा संगठन दिखाएगा कि हम क्या है। हम शहर के मुख्य सड़क को, क्योंकि एनटीसीए जैसे प्रोटेस्ट को रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? उन सरकारों की थी जिन्होंने ये होने दिया, पर अब नहीं। हम शहर के फिर मुख्य सड़क को जाम करेंगे और हम बताएंगे कि ये नहीं होना चाहिए। जब लड़ाई ही लड़नी है और संगठन और यही खेलना है, धरना ही, तो अच्छे से धरना खेलेंगे। तो जगन्नाथ यात्रा की मैं बात कर रहा था। भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा को रोकने की जो साजिश कर रहे थे लगातार, ये फिर होगा। मैंने अभी पढ़ा है, मैं हर साल कांवर लेके जाता हूं। आप में से बहुत सारे पुराने मेरे फॉलोअर जो हैं, मेरे दोस्त मित्र जो हैं, वो आप जानते हैं। हर साल श्रावणी मेला में मैं कांवर लेके जाता हूं 108 किलोमीटर पैदल, सुल्तानगंज से देवघर तक। इस साल मैंने पढ़ा कि श्रावणी मेला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? गोलगप्पे लोग खा रहे हैं, चाट पकौड़े खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, सब पेंडेमिक में सब चल रहा है। कांवर यात्रा नहीं होगी, वहां पे महामारी। अरे जब महामारी या तो फैलेगी या नहीं फैलेगी वो हम देख लेंगे भाई। अगर यही बात अब रह गई है तो देख लेंगे फिर। हमें कांवर यात्रा का अधिकार मिलना चाहिए भाई। ये क्या बवाल है? आप क्यों नहीं होने देंगे श्रावणी मेला? कम लोगों को रखिए, टिकट बनाइए, कुछ कीजिए, लेकिन श्रावणी मेला शिव जी के ऊपर श्रावण में मास में गंगाजल तो चढ़ना ही चढ़ना चाहिए। क्यों नहीं चढ़ेगा? आप सिंबॉलिज्म कर, अभिषेक तिवारी को मत जाने दीजिए, आप सिंबॉलिक यात्रा कराइए, 20 लोगों को जाने दीजिए। आप सिंबॉलिक कांवर यात्रा करा दीजिए, 20 लोग 30 लोग को कांवर लेके जाने दीजिए, तब तो महामारी नहीं फैलेगी, या तब भी फैलेगी। और अगर 50 लोग से महामारी फैलेगी तो भाई साहब पहले देश के तमाम मस्जिद और चर्च भी बंद कीजिए, क्योंकि वहां हर संडे को हो रहा है, हर फ्राइडे को हो रहा है। बस हिंदू ही इस देश में जो मेजॉरिटी है वही नहीं कर सकता अपने पूजा पाठ। उसी को वो तमाम अधिकार उससे वंचित कर दिए गए हैं जिन अधिकारों पे उनका कभी हक था। साला इतना बेकार तो हिंदुओं का स्थिति अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा है कि अंग्रेजों के टाइम में भी जब महामारी फैली थी या प्लेग व्लेग फैला था तो ये सारी चीजें बंद कर दी गई थी। नहीं बंद हुई थी, तब भी हिंदू अपना यात्रा किए थे। यानी जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तब भी। अच्छा, जब हम मुगलों के गुलाम थे तब भी कांवर यात्रा नहीं रुकी। फिर अब क्यों? 50-100 लोग से फैल जाएगा। आप आदेश देते कि कम से कम पंडा जो हैं वो लोग कर सकते हैं, या फिर वो लोग श्रावणी मेला कर सकते हैं जिनको आप अधिकार दें, पहचान पत्र दे के बांटे। बहुत सारे तरीके हैं आप, लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि हिंदुओं के हर उस विचारधारा और मानसिक रूप से उनको तोड़ा जा रहा है। अब हिंदुओं को इसी देश में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसके खिलाफ आर्यावर्त संगठन को अब सड़कों पे आना होगा। जय श्री राम।